So we ended at after clearing how many particles per unit cell is there. Now we'll start with the relationship between molar mass, density of the substance and unit cell edge length, so that we can understand how it is reduced. Okay. Now if edge length of a cubic unit cell is A, the volume of the unit cell is A cube. Okay. So what is this? If edge length of a cubic unit cell is A, the volume of the unit cell is A cube. Please sit there over there. Then they can. So the volume of unit cell is A cube. Now all of us know that cubic measurement basically itself means that you have something that is to the power of 3. So if the length of the unit cell is A, the volume becomes A cube. Now if you suppose that mass of one particle is m, and there are n particles, so the mass of the unit cell becomes m into n, right? Like for example, if one pen has a mass of, let's say, 5, and you have 100 pens, so the total mass will become 5 into 100, 500, right? Now the density of the unit cell, which is the same as the density of the substance, is given by density is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell, which means m into n upon A cube, because volume of unit cell is A cube and mass of unit cell is m into n. Similarly, the molar mass of the substance is given by m is equal to mass of one particle multiplied by number of particles per mole. So you get m into Na. Na is Avogadro number. Therefore, m is equal to m upon Na. If you combine both the equations, you get density is equal to number of mass of particles divided by volume multiplied by Avogadro number. Okay? Now they have given you an example. They have given you what is the mass. They have given you the number. They have given you the Avogadro number ka value. They have given you length, and they have also given you what else they have given? Nothing else they have given you. So they want the density. You multiplied it all, and whatever remained is the answer. Don't ask me how did they come up to that answer. Basically, they divided it certainly, but you are supposed to know. So what will happen is if you calculate 8 3 is 24, and 24 minus 23 will give you 1. So 1 and then 6 4 is 24, that will give you 2. So that is the reason why the answer is 19.27 gram per centimeter cube, or 19.27 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Now coming to packing of particles in crystal lattice. Now the constituent particles of a crystalline solid are close packed. While describing the packing of particles in a crystal, the individual particles are treated as hard spheres. The closeness of particles maximizes the interparticle attractions. The number of neighboring spheres that touch any given sphere is its coordination number. Magnitude of the coordination number is a measure of the compactness of spheres in close packed structures. The larger the coordination number, the closer are the spheres to each other. तो जो भी particles होते हैं crystalline solid के, वो एक साथ बहुत ही tightly pack होते हैं. अब जब हम किसी क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में भी हार्ड स्फीयर्स के जैसे हैं, और ये एक दूसरे के कितने नज़दीक हैं उसके ऊपर इनका मतलब एक दूसरे के नज़दीक होने की वजह से इनका जो फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाता है. जितने भी नेबरिंग स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते हैं उसको उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बनते हैं. इस कोऑर्डिनेशन नंबर को का मेजर जो है वो यही है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसका स्फीयर के क्लोज पैक स्ट्रक्चर की वजह से ही इंक्रीज होता रहता है. तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज़्यादा वो लोग एक दूसरे के क्लोज रहेंगे. ठीक है. Now coming to closed packed structures. The three-dimensional closed packed structure can be understood conveniently by looking at the closed packing in 1 and 2 dimensions. Closed packing in 1 dimension. A closed packed one-dimensional structure results by arranging the spheres to touch each other in a row. Closed packing in 2 dimensions. A closed packed 2-dimensional planar structure results by stacking the rows together such that they are in contact with each other. There are 2 ways to obtain closed packing in 2 dimensions. Now, let's come up to closed packing in 1 dimension. A closed packed one-dimensional structure results by arranging the spheres to touch each other in a row. This means in a row they will touch each other. In 2 dimensions, that is a planar structure, it will result by stacking the rows together such as that they are in contact with each other.
देयर आर टू वेज टू ऑब्टेन क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। तो वन डायमेंशन में तो सीधा रो के हिसाब से हो गया, टू डायमेंशंस के दो तरीके हैं। नीचे फिगर 1.3 में ए में आप देख सकते हो वन डायमेंशन में कैसा हो रहा है, और बी और सी में आप देख सकते हो कि टू डायमेंशन में कैसा होता है। तो बी कौन सा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल रो ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर सच दैट स्फीयर्स अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। मतलब अब ये सिंगल रो है बराबर, तो इसके ऊपर एक और रो, इसके ऊपर एक और रो, इसके ऊपर एक और रो, तो हॉरिजॉन्टली भी हो गया, वर्टिकली भी हो गया, है ना। If the first row is labeled as A type, being exactly same as the first row, then the second row is also labeled as A type. Hence, this arrangement is called A type two-dimensional arrangement. In this arrangement, every sphere touches four neighboring spheres. तो हर sphere के आसपास कितने होते हैं, चार होते हैं। Hence, two-dimensional coordination number here is 4. क्या है उसका नंबर, 4। इसका दूसरा तरीका है hexagonal close packing। ये फिगर 1.3 C में बताया गया है, ठीक है। तो close packed one dimensional figure shows there are depressions between the neighboring spheres. If the second row is arranged in such a way that its sphere fits in the depression of the first row, a staggered arrangement results. तो अभी तुम लोग अगर B का देखोगे तो बीच बीच में गैप दिख रहा है ना। अब अगर C में देखोगे तो वो गैप गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, क्योंकि जो A में गैप था, ये A है, हाँ, तो इधर बीच में गैप है, तो B उसका जो दूसरा वाला होगा उस गैप पे आएगा। फिर वापस यहाँ गैप बन गया तो उसके ऊपर वाला इस गैप में आया, फिर यहाँ गैप बन गया तो उसके ऊपर वाला ये गैप में आया, जैसा कि फिगर 1.3 के सी में दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट रो है उसको हम ए टाइप कहेंगे बिकॉज, और बट जो सेकंड रो है वो डिफरेंट है इसलिए उसको बी टाइप कहेंगे। तो और फिर वापस से थर्ड रो जो है वो फर्स्ट रो जैसा है तो उसको फिर ए टाइप कहेंगे, और फिर जो फोर्थ रो है वो बी जैसा तो वो बी टाइप हो गया। तो इसका जो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो ए बी टाइप का, किस टाइप का है, ए बी टाइप का। इस अरेंजमेंट में हर स्फीयर जो है वो अपने आसपास के 6 क्लोजेस्ट नेबर्स को टच करता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। जो रेगुलर हेक्सागोन ऑब्टेन होता है उस 6 क्लोजेस्ट स्फीयर्स के मिलने की वजह से बनता है, इसीलिए इस टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के कितने टाइप है, 2 टाइप है, एक क्या है स्क्वायर और एक क्या है हेक्सागोनल। Compared to the square close packing in 2 dimensions, the coordination number in hexagonal close packing in 2 dimensions is higher. Obviously, उसमें 4 है, इसमें 6 है। Moreover, the free space in this arrangement is less than in square packing. Square packing में देखो आपको सीधा सीधा फ्री स्पेस दिख रहा है, बट इसके अंदर आपको फ्री स्पेस नहीं दिखाई देगा। तो इस अब ये जो फ्री स्पेस है ये एक ट्रायंगल के शेप में होता है। तो ये ट्रायंगल पॉइंट्स भी जो है वो 2 तरीके होते हैं, एक होता है एपेक्स, और या तो ये अपवर्ड्स की तरफ पॉइंट करेगा या डाउनवर्ड्स की तरफ पॉइंट करेगा। तो 2 डायमेंशंस का हो गया। नाउ कमिंग टू क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो 2 डायमेंशन लेयर्स को अगर एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे तो हमें 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेयर मिलेगा। इसमें जो है, इसमें 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेयर का जो स्टैक है वो एक ही तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सिंपल क्यूबिक लैटिस मिलेगा। लेकिन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल जो है वो 2 तरीके से ये हो सकता है, और ये जो 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि 2 डायमेंशंस आपको समझ गया। 3 डायमेंशंस में 2 तरीके हैं। 3 डायमेंशन में पहले तो अगर जो स्क्वायर का के ऊपर स्क्वायर स्ट्रक्चर बनता है तो वो तो नॉर्मल क्यूबॉइड जैसा बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक और स्क्वायर स्ट्रक्चर हो गया, ये प्रॉपर एक क्यूब की जैसा बन गया। बट जो हेक्सागोनल है उसके 2 तरीके हैं। एक तो उसमें है कि जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो है उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ कमिंग टू स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। तो जो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर है ये 3 डायमेंशनल जो बनाता है उसको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ का जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर होता है और उस तरह से वो फर्स्ट लेयर जैसे बनता जाता है। आप 1.4 देख सकते हो, ठीक है। इस अरेंजमेंट में जो स्फीयर्स बनते हैं वो एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली पूरी तरह अलाइन होते हैं और वर्टिकली भी होते हैं, और इनके सारे लेयर्स अलाइन होने की वजह से इनको ए अरेंजमेंट कहा जाता है। इसको सिंपल क्यूबिक कहते हैं और इस यूनिट सेल का प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। आप ये भी देख सकते हो कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें हर एक स्फीयर अपने आसपास के 6 स्फीयर्स को जोड़ता है, 4 अपने लेयर में और एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। अभी देखो ये जो स्क्वायर वाला था जब ये 2 डायमेंशन में था तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया है, क्योंकि ये अब 3 डायमेंशन में है, ठीक है। Now coming to stacking of 2 hexagonal close pack layer.
To generate a close packed three-dimensional structure, hexagonal close packed layers are arranged in a particular manner. In doing so, spheres of the second layer are placed in the depression of the first layer. अभी आप ऊपर जाके अगर वापस 1.3 देखोगे तो इवन जो हेक्सागोनल टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर था उसमें भी थोड़ा सा गैप बीच बीच में दिख रहा है, देखो हल्का हल्का दिख रहा है ना 1.3 का सी देखोगे तो अब ये जो गैप है इसके ऊपर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो वो डिप्रेशन को भी वो कवर करता है, ठीक है। और फिर वो जो 1.5 का डायग्राम देखोगे तो देखो नीचे हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर है जो कि 2 डायमेंशंस में है, और उसके ऊपर एक और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जो कि उसके डिप्रेशन में आके अब 3 डायमेंशनल हो गया है। इसमें अगर पहले लेयर को ए कहेंगे तो दूसरे को बी कहेंगे, और ये सारे के सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स जो हैं वो कवर नहीं हो रहे हैं, तो इनके जो कवर सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये 4 स्फीयर से कनेक्टेड होता है। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर टेट्राहेड्रल वॉइड्स को एनक्लोज करते हुए एक नया स्फीयर फॉर्म होता है। इस बाकी के ट्रायंगुलर वॉइड्स को फर्स्ट लेयर के उनको सेकंड लेयर में कवर करते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर वो कवर होते होते ऑक्टाहेड्रल बनता है जो चारों तरफ से 6 लेयर से कवर्ड रहता है। आप 1.6 और 1.7 देखेंगे तो आपको टेट्राहेड्रल होल और ऑक्टाहेड्रल होल दोनों समझ में आएगा। कोई क्वेश्चंस अभी तक? नाउ प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल, ये देखो ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जब आपके जो सेंटर 4 स्फीयर्स के हैं जो वो जुड़ते हैं तो टेट्राहेड्रन बनता है। अब जो बचा हुआ ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर आप एक और लेयर रखोगे और एक लेयर रखोगे तो जो ये आगे आगे लेयर बनते जाते हैं, इसका जो ट्रायंगुलर वॉइड है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। जब ये ओवरलैप हो जाता है तो अब जो बचता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्योंकि 8 स्फीयर्स के बीच में से भी वो बच रहा है। दिख रहा है ना आपको? Now placing third hexagonal closed pack layer. There are 2 types of placing the third hexagonal closed pack layer on the second. One way of doing this is to align the spheres of the third layer with the spheres of the first layer. So you get ABAB, which is an hexagonal closed pack structure. Metals such as magnesium, zinc have HCP crystal structure, which is hexagonal closed pack. The second is placing the third on the third hexagonal closed pack layer on the second is to cover the octahedral voids by spheres of the third layer. In such placing, the spheres of the third layer do not align with the spheres of the second or the spheres of the first. तो देखो पहला था तो पहले के डिप्रेशन में दूसरा आया, अब पहले और दूसरे के बाद भी थोड़ा सा डिप्रेशन बच रहा है। अगर उसको भी कवर कर दिया, देखो जो ऊपर वाला था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक में आपने उसको कवर नहीं किया था, आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर के हिसाब से डाला, बराबर? ये 1 ये 2 फिर 1 फिर 2। लेकिन अगर आप ये नहीं करके आप जो थर्ड लेयर डालते हो वो इंडिपेंडेंटली आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को खत्म करने के लिए बनाते हो, तब आपको तीसरे लेयर को सी लेयर कहना है। क्या कहना है? सी लेयर। अब ये जो स्फीयर है इसका जो फोर्थ लेयर है वो पहले लेयर से मैच होगा, यानी पहला लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर फिर पहला लेयर फिर दूसरा लेयर फिर तीसरा लेयर। अभी ए बी और सी के फॉर्म में आएगा। अब ये एबीसी के फॉर्म में हो गया। अभी तक एबी के फॉर्म में था, अब एबीसी के फॉर्म में हो गया। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैक। ये फेस क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर के जैसा ही है, जैसे कि कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो इस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हो दोनों डिजाइन्स को। फिगर 1.8 का जो ए है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है। इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट के वॉइड में सेकंड, फिर जो थर्ड है वो वापस फर्स्ट जैसा। लेकिन बी में आप देखो कोई बिल्कुल होल नहीं दिख रहा है ना, बहुत कम जगह बची है, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर सेकंड, फिर जो थर्ड है वो सेकंड के गैप में आ जाता है। ठीक है? Coordination number in close pack structure. In the simple cubic crystal structure that results from stacking of square close pack layers, each sphere is surrounded by 6 neighboring spheres, 4 in its own, 1 above and 1 below. Hence, the coordination number of any sphere in simple cubic structure is 6. In both hexagonal close pack and क्यूबिक क्लोज पैक या फेस क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर में ये जो स्टैकिंग है वो दो वजह से पूरी तरह ब्लॉक होती है। तो हर एक स्फीयर के आसपास 12 नेबरिंग स्फीयर है, 6 अपने लेयर में, 3 ऊपर और 3 नीचे। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12 है। तो ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12 है। नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अब अकर होते हैं, इसमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हर एक एटम के साथ एसोसिएट होता है।
और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो आधा हो जाता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो तुम मुझे पूछोगे सर टेट्राहेड्रल वॉइड कब होता है? जब पहला और दूसरा लेयर पड़ता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्योंकि आपके पास 4 स्फीयर्स है। जब तीसरा लेयर पड़ जाता है तो अब जो वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास 8 स्फीयर्स के बीच में से गैप है। ठीक है, तो जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उससे आधे आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। यानी कि अब जैसे आपके पास दो टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम था, अब आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? गैप कटा अभी पूछ रही वॉइड, कब से वॉइड चिल्ला रहा हूं मैं? वहां से पहले वाले डायग्राम से वॉइड है, देखो ऊपर जाओ 1.3 में देखो वॉइड है ना, वो बी में जो बीच का गैप है वो वॉइड है, फिर सी में भी वॉइड है, फिर उस दोनों वॉइड का उसने नाम दिया। देखो यहाँ पे 1.6 में टेट्राहेड्रल वॉइड, 1.7 में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वही चीज है बेटा। क्या वो सो रही हो क्या? नाउ कमिंग टू पैकिंग एफिशिएंसी। सो रही हो क्या बोलो तो बिना ऐसे देता। Like coordination number, the magnitude of packing efficiency gives a measure of how tightly particles are packed together. Packing efficiency is the fraction or a percentage of the total space occupied by the spheres. तो packing efficiency क्या है? वो एक ऐसा फ्रैक्शन है, परसेंटेज है जो बताता है कि टोटल स्पेस कितना स्फीयर्स ये कर रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं ना वैसा ही। ठीक है, now coming to packing efficiency of metal crystal and simple cubic lattice is obtained by following steps. Simple cubic lattice सबको याद है ना, हमने कल देखा था। हाँ, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है? अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के कॉर्नर पे टच करते हैं या एज पे टच करते हैं, तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आप फेस मेजर कर सकते हो। A is equal to 2r, यानी कि R is equal to A upon 2। यहाँ पे R क्या है? रेडियस है, और A क्या है? लेंथ ऑफ यूनिट सेल H। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम बना है 1.9 में, दिख सकता है आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही मालूम है, बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है? रेडियस है, बराबर। तो अब आपको 4/3 पाई आर क्यूब में आर का वैल्यू क्या था? हमने स्टेप 1 में आर का दूसरा एक वैल्यू निकाला। क्या निकाला था? आर इज इक्वल टू A upon 2, R is equal to A upon 2। तो 4/3 पाई आर क्यूब में 4/3 पाई का वैल्यू आप ऐसे रखोगे और R क्यूब की जगह पे A upon 2 क्यूब करोगे, तो A upon 2 क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या बचेगा? देखो 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय A upon 8, 8 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 3 जा 6, तो पाई A क्यूब अपॉन 6 क्या वैल्यू मिलता है? पाई A क्यूब अपॉन 6। Now coming to step 3, total volume of particles. Because simple cubic unit cell contains only one particle, volume occupied by particle in unit cell is equal to pi A cube upon 6। क्यों? क्योंकि हर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के हर एक यूनिट में कितना पार्टिकल होता है? एक ही होता है। इसके लिए टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? पाई A क्यूब अपॉन 6। तो अब अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो पाई A क्यूब अपॉन 6 डिवाइडेड बाय A क्यूब इनटू 100। क्यों A क्यूब? क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है? A क्यूब ही है, बराबर ना। A लेंथ है, A इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है? L क्यूब, यानी लेंथ क्यूब, राइट। लेंथ क्या है? A है, तो A क्यूब। तो पाई A क्यूब अपॉन 6 अपॉन A क्यूब इनटू 100। A क्यूब कट हो गया, 100 पाई अपॉन 6। पाई का वैल्यू 3.142 डाला तो आपको मिल रहा है 52.36। इसका मतलब क्या है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में 52.36% ऑफ टोटल स्पेस जो है वो पार्टिकल से भरा हुआ है, और 47.64% एम्प्टी स्पेस है, यानी कि वॉइड वॉल्यूम। मुझे कौन बताएगा कि 47.64 कैसे मिला उसको? 47.64 कैसे मिला उसको? 52.36 कैसे मिला? ये तो हमने देखा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के। तो 47.64 कैसा मिला? 52.36 टोटल स्पेस है जो पार्टिकल से ऑक्यूपाई किया है, तो 47.64 कैसे मालूम पड़ा कि एम्प्टी स्पेस है? हाँ, 4 बार चिल्लाने के बाद दिमाग चलता है। तो ये दोनों सोने को आए इधर।
Now coming to packing efficiency of metal crystal in body centered cubic lattice. अभी हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस का कैलकुलेट किया, अब हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे रेडियस निकालने कैसे निकालोगे? उसमें तो रेडियस बड़ा इजी था क्योंकि आपका जो लेंथ था वही रेडियस था, बट ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड कैसा होता है देखा ना हमने, एक के बाजू में एक। अब बॉडी सेंटर्ड में आप कैसे निकालोगे? तो अब आप बॉडी सेंटर्ड में निकालोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम। पहले आप ट्रायंगल बनाओगे FED या मतलब जो भी आपने नाम दिया है उसमें आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप रेडियस का वैल्यू निकालोगे। तो आपको रेडियस का वैल्यू क्या मिला? √3a, क्योंकि एक a है एक 2a है। a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज व्हाट? 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो क्या आएगा? √3a। समझा सबको कैसे आया? तो √3a इज इक्वल टू 4r, देयरफॉर r इज इक्वल टू √3/4a। क्यों 4r? क्यों 4r? √3 is why 4r? Why? Yes, because in a simple cubic it's twice and it's in a body centered cubic it is 4 times. Good job, Aditi. Good job. दिमाग चल रहा है अभी। Now coming to volume of sphere, same formula आप लगाओगे 4/3 pi r cube। आपका उसको स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, आपको आंसर आएगा √3 pi a cube upon 16। आपको पता है कि यूनिट सेल के इसमें दो पार्टिकल होते हैं, कल हम लोग पढ़े थे ना। सिंपल में एक होता है, बॉडी सेंट्रिक में कितना होता है? 2 होता है। यानी कि टोटल वॉल्यूम क्या है? √3 pi a cube upon 16 into 2, 2 1s are 2 8s are, तो √3 pi a cube upon 8 आ गया। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी सेम फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 68% आ जाएगा। सिंपल इनफ, कोई डाउट इसमें? ठीक है। Now coming to packing efficiency of metal crystal in face centered cubic, यानी कि अभी जो हमने पढ़ा FCP, CCP या HCP, इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपको लेंथ का वैल्यू मिलेगा √2a। क्यों √2a? क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो √2a आपको मिल गया। तो उसके बाद अगेन 4r के आप वैल्यू से वैल्यू निकाल सकते हो। आपको बेसिकली वैल्यू मिलेगी लेंथ का मिलेगा, लेंथ अपॉन 2√2 आपको मिलेगा जो इसका रेडियस है। रेडियस आपको मिल गया, उसके बाद आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिलेगा। अब मेरे को बताओ कितने पार्टिकल्स होते हैं HCP में और CCP में? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक क्लोज पार्टिकल, हेक्सागोनल क्लोज पार्टिकल, कितने होते हैं उसमें? एक यूनिट में कितने पार्टिकल होते हैं? हाँ, एक यूनिट में कितने पार्टिकल होते हैं? अभी पढ़ा था हमने, 4 होते हैं। एक यूनिट में कितने होते हैं? हाँ, तो फिर आप 4 into pi a cube upon 12√2 करोगे, 4 1s are 4 3s are, तो आपको आएगा pi a cube upon 3√2 टोटल वॉल्यूम। अगेन आप पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 74% मिल जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ये सब पे? आपको ये सब खुद से करना आना चाहिए, बेसे सिंपल क्यूबिक से लेकर के HCP CCP तक। ठीक है। Now coming to edge length and particle parameters in cubic system, तो सिंपल क्यूबिक में रेडियस a/2 है, वॉल्यूम pi a cube upon 6 है, टोटल वॉल्यूम भी pi a cube upon 6 है क्योंकि एक ही पार्टिकल होता है। बॉडी सेंट्रिक क्यूबॉइड में रेडियस जो है वो √3a/4 है, वॉल्यूम एक पार्टिकल का √3 pi a cube upon 16 है, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो उसका आधा हो जाएगा क्योंकि 2 होते हैं एक में। और FCP CCP में pi a cube 12√2 है तो वो 4 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, तो pi a cube 3√2 आएगा आपको। सिंपल इनफ, वो टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Now coming to coordination number and packing efficiency in systems, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितने कोऑर्डिनेशन होते हैं? 6, 4 सेम लेयर में, एक ऊपर एक नीचे, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52.4। बॉडी सेंट्रिक क्यूबॉइड में 8 है, 4 उसी लेयर में, एक ऊपर और एक नीचे। तो अब इसमें नहीं, 4 उसी लेयर में, 2 ऊपर और 2 नीचे, देयर इज अ मिस्टेक देयर। ठीक है। और 12 में 6 उसी लेयर में, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो किसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है? 12 वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसी तरह से उसके वॉइड्स कवर करते हैं ना हम लोग बार बार, हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर में, क्यूबॉइड क्लोज स्ट्रक्चर में और इवन फेस वाले स्ट्रक्चर में, तीनों में हम उसको बहुत ही क्लोजली पैक करते हैं। ठीक है।
Any questions? पक्का? user brain power is cancelled. Okay. Geometry lattices SCDC and FCC as the most efficient packing of particles. This one has the least efficient packing. कहाँ? ये user brain power. कौन से पेज पर? Page number 30. वो नीचे आंसर दे दिया उसने 14 पे। अब क्या पूछनी थी मेरे को? पहले पूछी होती। अभी तो मैंने वही बताया ना, तूने वो बोला मेरे को कि एफसीपी सबसे ज्यादा है। दिखा ना पैकिंग एफिशिएंसी 74%। तब पूछी होती तो मेरे को मजा आता जवाब देने को। आंसर देने के बाद पूछती क्वेश्चन। कमाल लड़की है। अभी मैं वही बोला ना तेरे को कि किसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा, उसने बोला ना 12 वाले का, क्योंकि उसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। क्यों 74% है वो भी बताया मैंने, क्योंकि वो वॉइड्स को कवर करता है, बराबर। इसके लिए मैं बोलता हूँ जाऊँ क्यों रिकॉर्ड में। It's just a joke. Now coming to number of particles in unit cells in x gram of metallic crystal. The number of particles and the number of unit cells in given mass of a metal can be calculated from the known parameters of unit cell, namely number of particles n per unit cell and volume a cube of unit cell. Density and molar mass of a metal are related to each other through unit cell parameters as shown below. We already know density is equal to mass upon volume. We also know that number of particles in unit cell upon volume of unit cell will be multiplied by molar value upon number of Avogadro. So where n is the particles and a is the volume of unit cell. So you get the value x gram of metal contains x multiplied by number of Avogadro upon m. number of Avogadro का वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम मेटल भी आपको उसी तरह से मिलेगा, और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम b ऑफ मेटल आप b अपॉन a क्यूब के हिसाब से निकाल सकते हो। क्यों a क्यूब? क्यों a क्यूब? क्योंकि वो क्यूब का फॉर्मूला है। यस। Now there is a problem. 1.2. A compound made of elements C and D crystallizes in FCC structure. Atoms of C are present at the corner of the cube. Atoms of D are at the centers of the faces of the cube. What is the formula of the compound? C atoms are present at the 8 corners. The contribution of each corner is 1 upon 8. Hence the number of C atoms that belong to the unit cell is 1. D atoms are at the center. So it has 6 faces of the unit cell. Therefore, its contribution to each face is 1 upon 2 atom. Therefore, number of D atoms is 1 upon 2 into 6, which is equal to 3. There is 1 C atom and 3 D atoms. So formula of the compound is CD3. Simple enough. ये कौन सा compound है बताओ? Guess करो कौन सा compound है? हाँ। अबे CD उसने ऐसे ही बोला है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां पे हर एक एटम के लिए सामने वाले का 3 एटम है? NH3। ठीक है। प्रॉब्लम 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 आप लोग खुद से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हैं। Even those who are listening the lecture on the recording, please to solve the examples that are given. And there are another 7-8 pages to go. क्या करें आज खत्म करते हैं? We'll do one more page and then we'll end it for today. ठीक है? Now coming to crystal defects or imperfections. The real naturally occurring crystalline substances do not have perfect crystal structures. They have some disorders or irregularities in the stacking of atoms. Such irregularities in the arrangement of constituent particles of a solid crystal are called defects or imperfections. Defects are created during the process of crystallization. The imperfections are more if the crystallization occurs at a faster rate. It means that the defects can be minimized by carrying out crystallization at a slower rate. In fact, ideal crystals with no imperfections are possible only at the absolute zero of temperature. Above this temperature, no crystalline metals are 100% pure. They contain defects. Whatever be the nature of a crystal defect, electrical neutrality of a solid is maintained. It is important to note that sometimes defects are intentionally created for manipulating the desired properties in crystalline solids. तो ये क्या बोल रहा है? ये बेसिकली बोल रहा है कि कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट किसी क्रिस्टल को 100% परफेक्ट होने के लिए उसको 0 टेम्परेचर पे बनना जरूरी है। जितना जल्दी क्रिस्टल बनेगा उतना ज्यादा इम्परफेक्ट होगा, जितना टाइम लेके बनेगा उतना ज्यादा वो परफेक्ट होगा। बट उसका कोई भी नहीं उसका डिफेक्ट हो, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल को किसी पर्टिकुलर यूज के लिए बनाने के लिए उसके अंदर इम्परफेक्शंस होने चाहिए, जरूरी है। ठीक है।
Now there are three types of defect: point defect, line defect and plane defect. Only point defects will be discussed in this chapter. तो हमको क्या को पता है तीन है, कंफ्यूज करते हैं हमको, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या है, ये these defects are irregularities produced in the arrangement of bases at lattice points in crystalline solids. There are three major classes of point defects: stoichiometric point defect, impurity defect and non-stoichiometric point defect. इसी स्पेलिंग याद कर लेना। हाँ, अब वही पढ़ाने वाला हूँ बाबू, मेरा पूरा पैराग्राफ है उसका, देखो नीचे है पैराग्राफ। Stoichiometric point defect. Chemical formula of a compound shows fixed ratio of number of atoms or number of cations and anions. This fixed ratio is the stoichiometry of the compound. समझ गया क्या है stoichiometry? Stoichiometry मतलब कि कोई भी chemical formula होता है अगर किसी compound का, तो उसमें कितने atoms, कितने cations और कितने anions होनी चाहिए, फिक्स है, ये तुम्हारे मर्जी से आगे पीछे नहीं होता। इस फिक्स नंबर को कहते हैं stoichiometry। क्या कहते हैं? जब स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट हो जाता है तो स्टोइकोमेट्री जो है वो अनचेंज रहती है, यानी कि इसका जो रेशियो है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैशंस और एनियन का, ये सेम रहता है एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फॉर्मूला। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट्स: वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो स्टोइकोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट के भी चार अलग-अलग टाइप हैं। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट नाम से ही समझ में आता है कि कहीं पे जगह होना चाहिए था, उधर से पेल्टी मार गया, है ना। अभी से तुम लोगों को सबको एक लाइन पे खड़ा किया और बोला इसी लाइन में खड़ा रहने का, वैसे हर्षल का फोन आया और चला गया, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। So during crystallization of a solid, a particle is missing from its regular site in the crystal lattice. The missing particle creates a vacancy in the lattice structure. Thus, some of the lattice sites are vacant because of missing particles, as shown in figure 1.12. The crystal is then said to have a vacancy defect. The vacancy defect can also be developed when the substance is heated. गर्म होने पे भी एक वैकेंसी डिफेक्ट हो सकती है, या वो क्रिएशन के टाइम पे भी गायब हो सकता है, ठीक है। Due to absence of particles, the mass of the substance decreases. However, the volume remains unchanged. As a result, the density of the substance decreases. तो इसका मास जो है वो कम होता है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। अगर मास कम होगा और वॉल्यूम इतना रहेगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी ना। हाँ, अभी जैसे झाड़ू का गुच्छा है, उसमें से अपन ने 2 कांटे निकाल दिया तो झाड़ू का गुच्छा लूज हो जाता है ना। अपन ने और 4-5 निकाल दिया तो झाड़ू का गुच्छा कुछ काम का नहीं, फिर मम्मी उसी झाड़ू के गुच्छे को बांध के तुमको मारेगी कि क्यों निकाला उसमें से, है ना। Now coming to self-interstitial defect in elemental solid. Interstitial sites in crystal are the spaces or voids in between the particles at lattice point. When some particles of crystalline elemental solid occupy interstitial sites in the crystal structure, it is called self-interstitial defect. This defect occurs in two ways. Firstly, an extra particle occupies an empty interstitial space in the crystal structure as shown in figure 1.13. This extra particle is same as those already present at the lattice point. तो अभी जैसे for example अपना क्लास का मैंने एक रो में सब बच्चों को बिठाया, तो मैंने हर एक कॉर्नर में एक बच्चे को बिठाया, बट उधर से फिर एक बच्चा वहां से भाग के आके बीच में बैठेगा कि मैं इधर ही बैठेगा, तो ये क्या एम्प्टी स्पेस पे कोई दूसरा पार्टिकल आ गया जिसकी वजह से 1.13 का सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन गया। दूसरा क्या है, सेकेंडली इन एन एलिमेंटल सॉलिड अ पार्टिकल गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट। तो सेम चीज है, मैंने साइड में बिठाया था बराबर, तो एक बच्चा उधर से उठ के इधर आ गया, तो अब इधर तो एक तो गलत बैठा ही है और वहां पे वैकेंसी भी क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हैं, वहां पे वैकेंसी क्रिएट कर रहा है प्लस यहाँ पे बैठ जा रहा है, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है इसकी वजह से सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है कि जो सेकंड केस है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो वैकेंसी डिफेक्ट से क्रिएट करता है उसी टाइम पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नए पोजीशन में करता है। इसके लिए इसको हम दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, एक जगह वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, एक जगह सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है। वैसे बच्चे तो ना मेरे दोस्त के साथ ही बैठेगा, बट इसमें डेंसिटी का नुकसान नहीं होता क्योंकि बच्चा है ही ना अंदर, वॉल्यूम में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वॉल्यूम उतना ही है, मास में प्रॉब्लम नहीं हो रहा क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहा है ना। मतलब सारी झाड़ू के डंडे को बाहर ऊपर थोड़ा खींच के बीच में आधे में छोड़ दिया, तो ना झाड़ू मार पाओगे ना कुछ कर पाओगे, लेकिन डेंसिटी उतनी ही रहेगी झाड़ू की, बराबर। नाउ कमिंग टू स्कॉटकी डिफेक्ट, ऐसे नाम देती है इस टाइप को। In an ionic solid, equal number of cations and anions are missing from the regular positions in the crystal, that is creating vacancies as shown in figure 1.15. It means that a vacancy created by loss of cation is always accompanied by a vacancy created by a loss of anion. Thus, there exist two holes per ion pair lost, one created by missing cation and the other by a missing anion. Such a paired cation anion vacancy defect is a Schottky defect. तो अभी जैसे क्लास में सब बच्चों को बुलाया तो एक लड़का नहीं आया, तो वो लड़का नहीं आया बोल के उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं आई, तो फिर वो हमारा एक कैशन भी गया और एक एनियन भी गया, बराबर।
मतलब ऐसा था ना कि वो इधर आई, देखी इसकी स्कूटी नहीं होती, मैं भी जा रही, मैं नहीं आई। तो ये पैर में गायब होते हैं, जैसी पॉजिटिव गायब वैसी नेगेटिव गायब, है ना। ऐसा बहुत बार आपने देखा है कि आज ये क्यों नहीं आया, वो नहीं आया इसके लिए। अच्छा, तो दोनों के पेरेंट्स को फोन करके हम बजा देते थे। तो इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? जो कंडीशंस है फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट में, इसका क्या क्या है? एक तो हाई डिग्री आयनिक कैरेक्टर का होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनियन होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैशन एंड एनियन, द रेशियो इज नॉट फार बिलो यूनिटी। इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्योंकि आयंस डिक्रीज होता है तो मास कम होता है और वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहता है, इसकी वजह से डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या, तो दो जन कम हो गए तो अटेंडेंस स्ट्रेंथ कम हो गया, जगह तो उतना ही था ना अपने पास, वॉल्यूम तो उतना ही है, इसके वजह से ये अपना इसके जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। और मिसिंग कैशंस और एनियंस अगर इक्वल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, तो क्लास का बैलेंस बना है, क्योंकि एक एक दोनों जन कम आ गए ना, तो इसकी वजह से बैलेंस का इशू नहीं हो रहा है, न्यूट्रलिटी है, जितना पॉजिटिव गायब हो रहा है उतना नेगेटिव भी गायब हो रहा है। इस डिफेक्ट को हम किस आयनिक क्रिस्टल्स में देखते हैं? सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, सिल्वर ब्रोमियम यानी कि AgBr एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। Now coming to Frenkel defect. Frenkel defect arises when an ion of an ionic compound is missing from its regular lattice site and occupies interstitial position between lattice points as shown in figure 1.16. The cations are usually smaller than anions. It is therefore more common to find the cations occupying interstitial sites. It is easier for smaller cations to accommodate the interstitial spaces. तो अभी ये प्रॉब्लम क्या, एनियन बड़ा होता है, हाँ कैशन छोटा होता है, तो कैशन को पता नहीं क्या सोचता है, अपना जगह छोड़ के वो दूसरे के बाजू में जाके बैठ जाता है ना। तो वो वैसा करने की वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस क्रिएट होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये वैकेंसी भी क्रिएट करता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्रिएट करता है, इसके लिए इसको कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या है? फ्रेंकल डिफेक्ट्स अकर्स इन आयनिक कंपाउंड्स विच लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइजेस ऑफ कैशन एंड एनियन, मतलब एनियन बहुत बड़ा, कैशन बहुत छोटा होता है, वहां पे ये ज्यादा होते हैं। और ये जो आयंस हैं ये इनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो या तो सिंपल क्यूबिक या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक होगा, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कोई आयंस मिसिंग नहीं है, इसके लिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि कैशंस और एनियंस दोनों प्रेजेंट है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जिंक सल्फेट में, सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमियम में, सिल्वर क्या है, और कैल्शियम फ्लोरीन में। ठीक है। Now coming with impurity defect. Impurity defect arises when foreign atoms, that is atoms from different host atoms, are present in the crystal lattice. तो अपने मतलब इसको एग्जांपल में लेना है कि दूसरे क्लास का बच्चा आके बैठ गया, अपने को मालूम ही नहीं, हमारा नहीं है, सब लोग सोच रहे हैं कि हमने आज पहली बार देखा, फिर मालूम पड़ा तो ऐसे ही आके बैठ गया, है ना। ऐसा वो है हमारे साथ। तो इसको हम कहते हैं impurity defect. Now coming to substitutional impurity defect. अच्छा, इसमें तो वो बच्चा आगे खाली बैठ गया तो वो impurity defect है। substitutional impurity defect में वो खाली आके बैठा नहीं, उसने उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया दोनों एक दूसरे क्लास में जाके देखेंगे कैसा है, तो इधर से एक बच्चा उसके क्लास में गया, उधर से एक बच्चा इधर आया। ठीक है। तो in this defect, substitutional impurity defect, in this defect the foreign atoms are found at lattice site in place of host atoms. So for example, solid solutions of metal, brass is an alloy of copper and zinc. In brass, host copper atoms are replaced by impurity of zinc atoms. The zinc atoms occupy regular sites of copper atom as shown in figure 1.17. है ना, दिख रहा है कॉपर के बीचों बीच में कहीं ना कहीं जाके जिंक बैठ गया है। ठीक है। I think that should be all for today. Next lecture में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 5 ही पेज बचा है। Thank you. Host atoms.